Hello my dear friends, I am Professor Varam Khan and this is the part 4 of unit number 4, transient and steady state response analysis of the subject automatic control system. In previous videos we have studied about transient and steady state response. What is the meaning of steady state response? What is the meaning of transient response? Which are the various standard input signals for a control system, and we also have studied the response of first order system for various types of standard inputs like step input, impulse input, then ramp input. So what are the various responses generated from these standard inputs, and based on these standard inputs the names of these responses are given. Like if the standard input is step input signal, then the response is also called as step response, as well as if it is impulse, so it is called as impulse response. So in today's video we are going to discuss about the second order system. So we have completed first order system, so we'll begin with second order system. And second order system we only have to study the step response, that is the response of control system to a step input, and we'll see slightly some of the part of impulse response, that is the response of control system to the impulse input signal. Okay, so let us begin. Response of second order system. In a previous video, in previous lecture, we have seen what is the meaning of second order system, what is the meaning of first order system. Okay, so we have seen first order system. First order system has the denominator term s. So if this s is having power 1, then that particular system is called as first order system, right? So let us discuss the time response of second order system now. And if you consider the following diagram, अगर आप ये following diagram देखते हैं, इसको consider करते हैं, so इसमें इस diagram में आपको एक reference input signal दिखेगा R of S. so इस R of S के basis पर ही हमारा जो है output produce होता है, जो कि हमारा C of S है, right? And here the transfer function of this block is given, that is omega n square upon s into s plus 2 delta omega n. So this is the gain, or you can say transfer function of this block. This block is connected with a feedback element, and this feedback element or this feedback system is having negative feedback with a value as an unity. Okay, so here an open loop transfer function, this is open loop transfer function omega n square upon s into s plus 2 delta omega is connected with a unity negative feedback control system. Okay, so this whole system is your closed loop system, but this particular part is your open loop transfer function, right? Now this is connected with a feedback system. Now all of us know the transfer function of this closed loop feedback system. Negative feedback system is your C of s divided by R of s, that is your transfer function, which is equals to G of s divided by 1 plus G of s. So here instead of G of s we have this value omega n square upon s into s plus 2 delta omega. Okay, so let us go ahead. We know the transfer function of closed loop system, yes, that I have written already. It is given by Cs upon Rs is equals to Gs upon 1 plus Gs. ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का. Gs की जगह पर, G ऑफ S की जगह पर अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू है, ओरिजिनल गेन की वैल्यू है, ब्लॉक की गेन की वैल्यू है, वो रख देंगे, दैट इज ओमेगा n स्क्वायर अपॉन s इंटू s प्लस 2 डेल्टा ओमेगा.
सो ये रखने पर मुझे ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से नजर आएगा, राइट। सो इट विल बी ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस 2 डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 2 डेल्टा ओमेगा। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इस ट्रांसफर फंक्शन को, सो ये ट्रांसफर फंक्शन मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा, फाइनली कुछ इस तरीके से वो नजर आएगा, विच इज इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन है इस सिस्टम का। और इस क्लोज लूप सिस्टम का अगर मैं ये ट्रांसफर फंक्शन देखता हूँ तो इसके अंदर ये जो s है, जो डिनोमिनेटर वाला s है, इस डिनोमिनेटर वाले s का जो पावर है इट इज 2, उसके रेज टू में कितना है 2 है, इसलिए ये जो s की पावर है 2, इट डिनोट्स दैट दिस कंट्रोल सिस्टम इज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। कौन सी ऑर्डर की है? सेकेंड ऑर्डर की। देखो हम सेकेंड ऑर्डर कब डिफाइन कर रहे हैं? जब हम इनपुट दे रहे हैं तब हम सेकेंड ऑर्डर डिफाइन नहीं कर रहे। जब हम हमारा ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं ना कंट्रोल सिस्टम का, तब हम क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं वेदर इट इज फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। सो अगर आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो अगर 1 अपॉन जो पहले इसमें था 1 अपॉन एस टी प्लस 1 है या 1 प्लस एस टी है, तो इस तरीके से है, और इसमें s की जो ऑर्डर है अगर 1 है तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसके बेसिस पर हमारा सिस्टम का ऑर्डर डिफाइन होता है, ओके। अगर आपका इनपुट देने के बाद में, फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें ओमेगा एन या डेल्टा के अगर मैंने इनपुट्स दिया और इसके बाद में ये s रेज टू 2 आता है, तो दैट इज नॉट सेकेंड ऑर्डर है, ओके। आफ्टर गिविंग इनपुट अगर ये s स्क्वायर हो जाता है, s क्यूब हो जाता है, तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर नहीं है। ट्रांसफर फंक्शन में उस s का डिनोमिनेटर में जो s है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यस 1 या 2। सो 1 अगर है सो इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर, अगर 2 है तो उसकी पावर अगर 2 है तो इट विल बी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ओके। नाउ अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सो दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन। नाउ दिस ट्रांसफर फंक्शन हैज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जैसे कि ये नीचे का डिनोमिनेटर वाला टर्म है एस स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अगर हम रूट्स निकालते हैं, सो इफ यू गेट रूट्स बाय द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जब हम लेते हैं, ये जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला है, राइट। ये रूट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट इससे निकालते हैं, तो अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं, सो आई गेट द रूट्स एज -2 ओमेगा डी एन प्लस माइनस अंडर रूट 2 डेल्टा ओमेगा एन whole square. So this should be like this, 2 delta omega n, and this is 2 delta omega n square minus 4 omega n square upon 2, okay. So it is equals to -2 delta into omega, -2 delta into omega, this term remains same, plus minus ओमेगा n अंडर रूट डेल्टा स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट डेल्टा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। नाउ इफ आई अगेन सिंप्लीफाई इट, अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस डेल्टा ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर माइनस 1। सो ये माइनस डेल्टा ओमेगा प्लस के साथ ये पूरी टर्म एक बार रहेगी, मतलब वो एक रूट बन जाएगा, और ये माइनस डेल्टा ओमेगा और ये माइनस के साथ ये टर्म रहेगी, ये दूसरा रूट बन जाएगा, ओके। अब इसमें 3 अलग अलग कंडीशंस हमको देखना है।
तीन कंडीशंस बेस्ड ऑन दीज रूट्स, ये रूट्स के ऊपर बेसिस पे तीन कंडीशन बनती है। व्हेन द टू रूट्स आर इमेजिनरी, जब भी ये टू रूट्स इमेजिनरी है तब, सॉरी ये टू रूट्स इमेजिनरी आते हैं जब ये डेल्टा जो है, दिस डेल्टा अगर ये जीरो है तो, इफ दिस डेल्टा इज जीरो देन दिस टू रूट्स आर इमेजिनरी। इफ दिस डेल्टा इज इक्वल टू 1, ओके, देन दिस टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दोनों भी रूट्स कैसे रहते हैं? रियल रहते हैं और साथ ही साथ में इक्वल रहते हैं। इफ दिस डेल्टा इज ग्रेटर देन 1 दैट इज मीन्स इट इज पॉजिटिव। ओके, सो ये दो रूट्स रियल है बट दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। एंड इन दिस डेल्टा लाइज बिटवीन 0 to 1, अगर ये डेल्टा 0 to 1 में लाई करता है देन दिस टू रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये दोनों भी रूट्स कैसे रहते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहते हैं। ओके, सो जो हमारा इक्वेशन है रूट्स के पहले का, उसके ऊपर मैं वापस से एम्फेसाइज करना चाहूंगा। सो दिस इज आवर ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। ओके, नाउ दिस ट्रांसफर फंक्शन इज CS अपॉन RS इज इक्वल टू दिस होल टर्म। सो इसको हम क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस RS को इस साइड में हम रख सकते हैं, राइट। सो इसको जब RS, व्हेन वी कैन रीराइट द इक्वेशन CS इज इक्वल्स टू ओमेगा n स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर इन द होल टर्म इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय R of S, that is your reference input. So this is your equation now. अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? आगे सिंप्लीफाई करेंगे। पहली चीज क्या करते हैं? हम इस इक्वेशन का लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। सो टेक लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस C of S, इट विल बी C of T, और जो भी दूसरी टर्म है, ये जो बची हुई टर्म है, इसका भी लैपलास होगा, राइट। टेक लैपलास ऑफ R of S, R of S का क्या हो जाएगा? R of T हो जाएगा। ओमेगा n इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है। एंड डेल्टा इज योर डैम्पिंग रेशो। ओके, सो फॉलो दिस स्टेप्स टू गेट रिस्पॉन्स, मतलब ये स्टेप्स हमको फॉलो करना है टू गेट द आउटपुट और रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इन द टाइम डोमेन। सो टेक लैपलास ऑफ दिस इनपुट सिग्नल R of t का, पहले तो लैपलास ले लो। ओके, R of t का R of S का लैपलास लो, इट विल बी इक्वल टू R of t। ओके, जो भी इनपुट सिग्नल रहेगा, इफ दिस इज स्टेप सिग्नल, अगर वो स्टेप सिग्नल है तो स्टेप सिग्नल का क्या करना है? आपको लैपलास निकालना है। ओके, पहले तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ओके, दिस R of t का। देन कंसिडर दिस इक्वेशन C of S, you would have this R of S from this step number 1। ये R of S आपके पास में रहेगा स्टेप नंबर 1 से। इस R of S को पुट अप करना है इस इक्वेशन में, दिस इज योर स्टेप नंबर 3। देन हमको CS मिल जाएगा बेस्ड ऑन दिस RS। सो अगर CS मिल गया है, अगर इट इज इन द फॉर्म ऑफ लैपलास, लैपलास के अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन लेने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी समथिंग, जो भी पार्शियल फ्रैक्शन उसका बनेगा। और वो होने के बाद में जो हमारा CS निकलेगा उसका क्या करना है? आपको इनवर्स लैपलास निकालना है, ताकि आप C of t जो है वो फाइंड कर सके, मतलब हमारा आउटपुट इन टाइम डोमेन फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, सो लेट अस गो अहेड। स्टेप 1 हम करते हैं। तो पहली चीज है हमारा इनपुट। सो इनपुट यहाँ पर हमारा क्या है? स्टेप है। ओके, स्टेप सिग्नल इनपुट है। सो स्टेप सिग्नल अगर हमारा इनपुट है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, वो सब चीजें हम देखेंगे। सिंस द इनपुट इज स्टेप सिग्नल, सो आवर रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप रिस्पॉन्स, एंड वी आर डूइंग इट फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। हम उसको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए कर रहे हैं। सो कंसिडर द यूनिट स्टेप सिग्नल एज एन इनपुट टू सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सो योर लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल इज 1 by s। R of t जो निकाला है मैंने, इट इज इक्वल्स टू 1 by s। ओके, R of s जो निकाला है वो है 1 by s, सॉरी। देन वी नो द ट्रांसफर फंक्शन, हमको ट्रांसफर फंक्शन पता है क्या है? ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ओके, तो इसको CS, इस RS को इधर ले लेंगे वापस से, और जो RS की वैल्यू है वो पुटअप करेंगे। सो वो पुटअप करने के पहले
हम पहली चीज देखेंगे, हमारे पास में 4 केसेस मैंने आपको बताया था। अगर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 है तो ये इमेजिनरी रहेंगे रूट्स, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 है तो ये रियल और इक्वल रहेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरीके से चारों भी केसेस हमको क्या करना है, स्टडी करना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द केस नंबर 1। डेल्टा जब 0 है तो ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, या हमारा जो स्टेप रिस्पॉन्स है, या जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा। तो ये हमको स्टडी करना है। सो सब्स्टिट्यूट डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 इन द ट्रांसफर फंक्शन। हमारा ट्रांसफर फंक्शन मैं वापस से लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, राइट, टू डेल्टा ओमेगा एन एस टू डेल्टा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन है, ओमेगा एन स्क्वायर। तो इसके अंदर ये जो डेल्टा है ये मुझे क्या डालना है, इज इक्वल्स टू 0 डालना है। तो जब मैं इसको 0 डालूंगा तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए मेरे पास जो रिमेनिंग टर्म है दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये बचती है, बराबर है। सो ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन है जब डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 है। ओके, डेल्टा क्या है, डैम्पिंग रेशियो। सो डैम्पिंग रेशियो अगर 0 है तो ये मेरी टर्म इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको मैं सी एस के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। सी एस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर ऑफ एस इधर लेना पड़ेगा। सो आर ऑफ एस इधर ले लिया। आर ऑफ एस की वैल्यू आपको पता है, सिंस वी आर यूजिंग स्टेप इनपुट, आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 बाय एस। सो ये 1 बाय एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो योर सी एस विल बिकम ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू 1 बाय एस। सो ये जो है ये मेरा वैल्यू आ गया आर ऑफ एस की वैल्यू डालने पर, सी एस की वैल्यू ये आ गई मेरे पास में। अगर ये चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, मतलब हमारे लैप्लास के स्टैंडर्ड में है, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। सो अप्लाई हमने डायरेक्ट किया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए हमने लैप्लास इनवर्स डायरेक्टली अप्लाई किया। सी ऑफ एस है तो उसका सी ऑफ टी हो जाएगा, सी टी हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये जो टर्म है इसमें से 1 बाय एस जो है उसका यू ऑफ टी मतलब 1 होगा। यू ऑफ टी अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो इट विल बी यू ऑफ टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा एन इंटू टी। सो ये जो बची हुई टर्म है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इसका बनता है कॉस ओमेगा एन इंटू टी इंटू यू ऑफ टी। ओके, सो ये लैप्लास कुछ इस तरीके से रहेगा, यू ऑफ टी माइनस कॉस ओमेगा एन टी इंटू यू ऑफ टी। तो इसमें से यू ऑफ टी कॉमन निकाल लिया। सो 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी इंटू यू ऑफ टी, वो कुछ इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम टू यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है यूनिट स्टेप इनपुट को सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, जब डेल्टा कितना है, 0 है। सो इससे क्या पता चलता है, इट विल बी, सो योर रिस्पॉन्स विल बी कंटिन्यूअस। ये कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल रहेगा विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। सो दैट इज द characteristics of this step input when delta is equal to 0. So it will be a continuous time signal with a constant amplitude and frequency. Let us go ahead, let us understand case number 2 when delta is 1. So delta 1 हम put up करेंगे, so it will be omega n square into omega n square upon s square plus 2 omega n s plus omega n square. So इसमें 1 put कर दिया है मैंने डेल्टा का, तो ये टर्म कुछ इस तरीके से बदल जाएगी। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का ये एक्सपांशन है। सो इसी तरीके से एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर का वो एक्सपांशन यहाँ पर मुझे देखने मिल रहा है, इसलिए उसको मैंने इस टर्म में लिख दिया इंटू आर ऑफ एस, मतलब इस आर ऑफ एस यहाँ का इधर आ गया। सो 1 बाय एस पुटअप करो फिर से इक्वेशन में, 1 बाय एस पुटअप करने पर जो मेरा सी ऑफ एस है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इन ब्रैकेट एस प्लस ओमेगा एन होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो बना लिया मैंने। ओके, अब सिंस इट इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैप्लास, विल डू पार्शियल फ्रैक्शन। सो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा,
ये जो टर्म है इसमें यस ये एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी. सो इट विल बी ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ओमेगा एन c upon s plus omega n whole square. Okay, so after simplifying you will get the values of a b c 1 minus 1 and omega n respectively. So substitute करो उसको हमारे पार्शियल फ्रैक्शन के इक्वेशन में, c of s की इक्वेशन में. so you will get this cs like this 1 by s minus 1 by s plus omega n minus omega n upon s plus omega n whole square. Okay, and if you apply Laplace transform on both sides, so उसको हम हमारा रिस्पॉन्स बोल सकते हैं. so it is equals to 1 minus e omega n t minus omega n t e raised to minus omega n t into u of t. सो इसमें मुझे कांस्टेंट टर्म भी देखने मिल रही है, मतलब हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी है, साथ ही साथ में हमारा ट्रांजिएंट रिस्पांस भी यहाँ पर मुझे देखने मिल रहा है. सो ट्रांजिएंट ये जो है ट्रांजिएंट रिस्पांस है और ये जो है ये मेरा कांस्टेंट रिस्पांस है. सो जो यूनिट स्टेप रिस्पांस है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, ओके, सो इट इज इक्वल्स टू सी ऑफ टी 1 minus e raised to omega n t minus omega n t e raised to minus omega n t into u of t when your delta is equals to 1. जब डेल्टा कितना है is equals to 1 है. so this unit step response of second order system will try to reach the step input in steady state. so ये दो केसेस अभी हम देखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में बची हुई हमारी दो केसेस हम स्टडी करेंगे. टिल देन